वो जो लैग और लीड था उसको समझते हैं वो आता कहाँ से अब। तो वी विल स्टडी प्योरली रेजिस्टिव, P इज इक्वल टू IR। हम्म, देन वी विल स्टडी प्योरली इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर अगर लग जाए एसी के साथ तो क्या होता है, एंड देन कैपेसिटर। ठीक है। ठीक है जी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइटल व्हिच इज AC। लिखने नहीं दे रहा ये। अच्छा। बहुत शातिर है बहुत। एनीवे, so the AC circuit containing only a resistor. कौन से पेज पे हो आप सर? I think I am on the page number 1. अच्छा, oh, अच्छा, I have started with the old. ओल्ड व्हाइट बोर्ड जो सुबह कर रहे Yeah, थे। yeah, got it. तभी वो. Okay, I am on. I think I let me go to then the fourth, the page number 4. पेज 2 भी खाली है। So page 2 भी खाली है. Let's go to page 2 then. We are on page 2, I think now. ये सब मैं तो हूँ। ठीक है. So let's talk about the AC circuit, which is आप कुछ लिख purely रहे हो सर? resistive. हाँ आप कुछ लिख रहे हो सर? हाँ, लिख नहीं रहा मुझे। पेज 4 पे जाना. अच्छा, पेज 4। मैं हिला नहीं लगता वहां से, मैंने ट्राई करी. हाँ, पेज 4 पे लिख रहा हूँ, ठीक ठीक है। है. So AC circuit containing only resistor, हम्म, which means you have this circuit where you have this resistor and then you have a AC source which is providing AC EMF. So V instantaneous is being given as V naught sine omega t. So हाँ। IT applying Ohm's law is equal to V naught sine omega t upon R हम्म, is equal to V naught by R sine omega t. I naught sine omega t, which means you can see that there is no phase difference between the current and the voltage. So if you हम्म, draw a phasor diagram for them, then the phasor diagram will show you that both the circles are, सिर्फ रेडियस का फर्क है, but angle wise both are identical. So you can see this and then you can also see the other one which is also drawn on top of it, but हाँ। I can use, क्योंकि एंगल तो होना नहीं है बीच में इन दोनों के. हम्म, Okay, so ठीक है. ठीक है। So you can see there is no phase difference. So हम्म, there is no phi between them. So यस सर। the voltage phasor, which is the line, rotating line, हाँ, इस समय किसी t पे है. यस सर। हो गया. मैं लिखो जो मर्जी लिखो, हाथ घुमा रहा हूँ मैं हवा में. यू कैन सी द लाइंस हाँ, लाइन दिख रही है। जो टेढ़ी मेढ़ी बन रही है. हाँ, खराब। ये मैं आई एम हाँ, नॉट टचिंग इवन, इट इज अच्छा। जस्ट कमिंग फ्रॉम नोवेयर. मतलब मेरा हाथ अभी 6 इंच ऊपर है अच्छा। लिखने से, ये हो रहा सुपर पावर्स। है. ओके. सो वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर हम्म, आर इन फेज, बट दे हैव नो डिफरेंस. सो हम्म, व्हाट यू सी राइट नाउ कि टी टाइम बीत चुका है जहां से भी शुरू हुए थे ये, हाँ। wherever they started from. So they started from some place, एक्स एक्सेस से शुरू हुए थे और एंटी क्लॉकवाइज घूम के वहां पहुंच गए. दोनों इकट्ठे ही चले और हम्म, इकट्ठे एक ही जगह पे पहुंच गए. वेट, लेट मी जस्ट ट्राइंग टू, नहीं हिलाने नहीं दे रहा. एनीवे, ये डायमीटर है. तो दे स्टार्टेड टुगेदर एंड दे फ्रॉम हेयर.
एक यहाँ था पिंक वाला, यस सर। और वो टी टाइम में ओमेगा टी घूम गया एंगल, और दूसरे वाला भी यही था। सो दोनों सेम टाइम में सेम जगह पे पहुंचे, नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, यस सर। ओमेगा टी। So this is their final position at t, some time t. They moved by this angle. So which is this? Theta. ठीक So है। both travel together. There is nobody leads, nobody lags. That's a हाँ। point being made in a resistive circuit, यस सर। right? So you can see the peak value is of the current is this much, right? In phase लिखो या same phase, one and the same thing. ओके। Whatever is inside the sine, for example, I write sine of omega t minus 30 degree. This is not for a resistive circuit. And I write cos, sorry, this is my some voltage is equal to sine of this, and this is V naught. And the current at any instant in the same circuit, so comes out to be I naught sine of omega t plus 60, hypothetically. ठीक है। So you can see the phase difference अगर निकालना हो, if you have to find the phase difference, right? So whatever is inside the sine is the phase. अच्छा। Okay, so I will do omega t plus 60 minus omega t plus 30. मैंने subtract कर दिया because I have to find the difference, यस सर। phase difference. So subtracting 90 degree. If I have to show this on a, this is not for a resistor, because अगर resistor होता तो ये this या तो दोनों ओमेगा टी प्लस 60 होने चाहिए थे, हाँ। या दोनों ओमेगा टी माइनस 30 होने चाहिए थे, यस सर। क्योंकि they have to be in phase in the case of resistor. So it is not necessary that you can get equations like this. You may get an equation which is sine of omega t minus 30 degree, and the current comes out to be sine of omega t minus 30. They are also in phase. अच्छा। आइडेंटिकल है दोनों का, जो साइन के अंदर लिखा होता है वो पूरा फेज होता है वो। ओके। So if you do a subtraction of these, you will get omega t minus 30 minus omega t plus 30. Zero, right? यस सर। What does this show? That they are in phase, because there is no phase difference. In phase, same phase, no phase difference. Are one and the same thing. करेक्ट। कोई फर्क नहीं है इनके अंदर. This example, however, had a phase difference of 90 degree. तो ये ओके। रेजिस्टर तो है ही नहीं बिल्कुल भी. रजिस्टर में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मंजूर है, phase difference between voltage phasor and the current phasor has to be zero. No phase. They have to rotate together. कोई लीड नहीं ठीक है। करेगा. ठीक है. यस सर। If in terms of sine you say as simple as that कि आपका जो वोल्टेज वाला है वो ऐसे है, ठीक है, और आपका जो तो बिल्कुल साथ साथ है, रिदमिक है. जब वोल्टेज पीक पे पहुंचती है तो एक करंट पहुंच रहा है पीक पे. दे हैव टू ट्रेवल टुगेदर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. यस। दोनों की जब वैल्यू √3/2 से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो यहाँ पे होंगे 60 डिग्री पे. दोनों जब यस सर। जीरो हो रहे हैं तो 180 डिग्री पे हो रहे हैं. दोनों दोबारा नेगेटिव साइड पे पीक पकड़ रहे हैं 270 पे. दोबारा नेगेटिव जीरो हो रहे हैं 360 पे. बिल्कुल कट्ठे कट्ठे चलेंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे डॉल्फिन्स कट्ठी निकल के जाती है ना ऐसे. सो हाँ। दिस इज द वे सिग्नल इज गोइंग टू बी. अच्छा। ठीक है. सो दिस इज ठीक है। when AC is connected to a resistor, your main learning is phase difference, and the phase is what is actually mentioned inside the sign. That's a phase of the alternating current. अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं ये V naught sin omega t minus 30 and ask you what is the phase of this, so your phase is this
ओमेगा टी माइनस 30, अच्छा द ठीक है। एंगल पार्ट ऑफ इट, कि वो टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे कहाँ पे है. ओके। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, जो साइन के अंदर लिखी है, दैट इज योर फेज, यस सर। हैज टू बी जीरो. सो इवन दिस इज अलाउड, रिमेंबर. हम्म। So far they ठीक are है। same. It is resistor. ठीक है. ठीक है। Because inductor and capacitor have different properties and they don't keep the phase difference to be zero. उनमें लीड लैग आ जाता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था थ्योरी में. पर हमने ये नहीं जाना था कि लीड को किस में कौन करता है, कैपेसिटर या इंडक्टर में. सो लेट्स गेट इनटू दैट डिटेल नाउ. पार्ट ओके। 2, AC circuit connected to a inductor. हम्म। So this is your inductor L, Henry. हम्म। This is your AC circuit. ठीक है. ठीक है। एंड इंडक्टर हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस अंडरस्टैंड. तो वोल्टेज सोर्स ने जो जो देना है वो तो अपीयर होगा इंडक्टर पे. सो लेट्स से द वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड्स अ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट विच इज गिवन बाय ई नॉट, लिखा हो वी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम्म। बोथ आर अलाउड फॉर वोल्टेज. ओके। ठीक है. नाउ रिमेंबर वन मोर पॉइंट, कि जो तार है इंडक्टर की, इट हैज नो रेजिस्टेंस. सो द इंडक्टर वायर, प्योर इंडक्टर, ओके, ओके। हैज नो रेजिस्टेंस. नहीं तो फिर एल और आर दोनों लेने पड़ते. हम्म। तो वायर हैज नो रेजिस्टेंस, रिमेंबर दैट. ठीक है. ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the situation, what will happen when the AC signal reaches the inductor and how does inductor react to that. इसको सर्किट को बोलते हैं इंडक्टिव AC सर्किट. इट्स एन इंडक्टिव. हम्म। जैसे पिछला था रेजिस्टिव, यस ये सर। है इंडक्टिव. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, इफ अ टाइम, इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि लेंजेज लॉ और फैराडेज लॉ से, if you have a time varying current passing through a circuit, then it gives you a back EMF which is given by minus LDI by dt. हाँ पढ़ा था। Right? So this is your back EMF. हम्म। EMI, electromagnetic induction. हाँ। And that is why we have to learn EMI. Because when the circuit gets this signal and reaches there, this sine signal is coming, right? ये तो time varying है. हम्म। टाइम से वेरी होता है तो हाँ। साइनसॉइडली. यस सर। तो ये जी आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है. Okay. So what happens is the net instantaneous EMF that gets generated in the inductor, because there is a time varying current, is say E. आपने इसके अंदर एक सिग्नल भेजा, पोटेंशियल भेजा, और आपने बोला let the value of instantaneous current which got generated in this inductor be I. हम्म। तो बैक ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट का जो डेरिवेटिव है वो ऐसे लिंक्ड होते हैं. हाँ। दिस इक्वेशन इज द ओनली इक्वेशन यू कैन यूज फॉर एन इंडक्टर. हमने ठीक है। अज्यूम कर लिया कि जब सिग्नल पहुंचा तो सिग्नल ने आई करंट जनरेट करा है. सो आई इज द इंस्टेंटेनियस, हमें मालूम नहीं है कितना है, हम निकालेंगे. हम्म। इंस्टेंटेनियस करंट, रजिस्टर में तो ओम्स लॉ लगा के खत्म कर दिया था ना. हाँ हाँ। V यस इज सर। इक्वल टू आई आर, यहाँ नहीं लगता ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज ठीक। ओनली एप्लीकेबल फॉर रजिस्टर्स. हम्म। इंस्टेंटेनियस करंट through inductor. We don't know how much, but we know the inductor is governed by the Lenz's law and Faraday's law. ओके। पता नहीं है, निकालते हैं. हम्म। All right. Now remember, अगर इसके अंदर कोई भी
So what is this EMF? This is the back EMF being given to you. Okay. Now, if you notice, this is the applied voltage and this is the back EMF. ये applied voltage है, ये वाली. हाँ. This is applied and this is the Lenz's law response to the applied time varying EMF. ये वापस आ रहा है. तो अगर मैं इसके ऊपर पूरा सर्किट देखूंगा यूं, right? So what will that circuit tell me if I have to write the Kirchhoff's law on this, for example, right? So the EMF of the source plus the back EMF, right, is equal to 0. 0. हाँ. और कुछ है ही नहीं सर्किट में. दो ही EMF है सर्किट में. कोई IR तो है नहीं राइट साइड वाला. नहीं तो जनरली आई वुड हैव रिटन IR समथिंग. The potential drops and the sum of EMFs are equal in a loop. KVL, something like that. ठीक है. तो ये EMF है, ये भी एक EMF ही है. दोनों EMF उल्टे हैं क्योंकि एक बैक है. Yes, sir. तो नहीं, माइनस साइन तो आ गया, लेकिन कुछ IR लिखने के लिए है नहीं अपने पास, राइट? कोई देयर आर नो, दिस इज नॉट द सिचुएशन कि जी दो बैटरी लगी हुई है उल्टी, एक बैक EMF मान लो और एक ये लगा हुआ है, इसमें लगा रहे हैं, राइट? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लॉस, नेगेटिव टू पॉजिटिव गेन, गेन एंड लॉस. ठीक है. तो इसमें तो मैं लिख सकता था नेट EMF इज इक्वल टू IR1 प्लस R2. द सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स. तो यहां तो मैं कर लेता, चलो अभी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस R2. यहां तो कुछ है ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं है ना, खत्म. सो E instantaneous therefore is LDI by dt, which goes to show that whatever is the instantaneous EMF you apply, the back EMF is exactly of the same value magnitude wise. दिख रहा है? Instantaneous applied potential and the back EMF generated in inductor are identical, they're equal. ठीक है. बट अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि what is I. So E की जगह I'm going to write E naught sin omega t dt is equal to LDI. My goal is to find I finally, remember. I find. और मुझे क्या करंट नहीं पता ना. ओम्स लॉ से रेजिस्टिव में तो मैंने निकाल लिया था. Yes, sir. यहाँ लेंजेस लॉ लगता है, तो आई कुडंट यूज ओम्स लॉ, आई यूज्ड लेंजेस लॉ because there is a back EMF involved in this. Okay. Now DI is equal to E naught peak EMF into sin omega t into dt upon L. I is equal to E naught by L sin omega t dt integral. DI, sorry, and integral. I have to find my integral, so I will write it as I is equal to E naught by L minus cos omega t by t plus constant of integration. मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, ठीक है. मेरा इंस्टेंटेनियस करंट टाइप का कुछ आ गया है, माइनस, सॉरी ये ओमेगा है. E naught by omega L cos omega t plus the constant of integration. देखते हैं क्या है constant of integration, क्योंकि हमें मालूम है t equal to 0, we know certain conditions कि क्या होता है इसके अंदर. ठीक है. तो हम उसको लगा के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेंगे. हमें निकालनी तो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, लेकिन कोई कंडीशन पता होनी चाहिए किस टी पे कितनी आई है. ओके. नाउ रिमेंबर दैट द इफ यू फाइंड एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी यू वुड हैव गॉट 0 वैल्यू. अगर आप एवरेज निकालते 0 टू टी इसकी कि भाई व्हाट इज अ करंट, यू वुड हैव गॉट दिस. करो इंटीग्रेट फिर साइन को. Yes, sir. 0, which is very weird. So we don't want to do that. Okay. So but it tells us that over a complete cycle the average is 0. If I put t equal to t, then the current indeed becomes 0.
average over a period, net has to be 0. Yes. So what do I do? I say, okay, so which means this is equal to, if t is equal to t, हाँ. है ना, तो क्या करा मैंने, इसके मैंने चेंज कर दिया, I is equal to minus E naught by omega L cos of 2 pi by t omega multiply by t plus k, और ये 0 है, ये भी कट गया, Yes, sir. माइनस ई नॉट कॉस ऑफ 2 पाई प्लस के, 0. So k is equal to E naught cos 2 pi is 1. ये आ गया मेरा, हाँ. Yes, sir. ठीक है. Wait, what have we studied? This should have been 0. दोनों साइड कट जाती हैं इसमें. Wait, let's redo. If I put t is equal to t, then this becomes it is 0 is equal to minus E naught cos of 2 pi is 1 and plus k. So k is equal to, ये कैसे आ रहा है यार? Average of cos is 0. इसकी एवरेज भी, अच्छा ठीक है, अंडरस्टूड, सॉरी, लेट मी रीराइट दिस. गलत सोचा ना, एवरेज इसका नहीं डालना था, ऐसे डालने देखो. Yes, सो द sir. आर्टिकुलेशन इज ओवर अ full cycle, the average of cos omega t हाँ. will also be 0, जैसे साइन का होता है, Yes, sir. क्योंकि cos behaves like this at t equal to 0, at t equal to 90, at t is equal to 180, 270, and it stops here, right? ठीक है. ठीक So है. if you notice, this is some area and these two areas are equal and identical and opposite. So ये negative और ये negative और ये positive cancel. ठीक है, negative negative and positive. हाँ. तो इसमें भी 0 ही आता है. साइन में तो it is very blatantly visible like this. लेकिन cos के अंदर ये वाला एरिया जो नेगेटिव वाला है वो क्लियरली विजिबल है. पॉजिटिव एरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये वाला और ये वाला, लेकिन ऐड करने पे द रिजल्टेंट इज स्टिल 0. 0 ही है. हाँ. Even if you do so, which means if I t, then cos omega t is also 0. 0 है. Over a full cycle, the average of cos omega t will also be 0. So if this is 0 at t equal to t, this is also 0, then k is equal to 0. So I t is equal to minus E naught omega L cos of omega t is the value of the instantaneous current. Let me do a small modification क्योंकि ये cos में और EMF sin में था. So let's make a small modification and say minus E naught omega L sin of omega t minus 90. Okay, अब ये negative sign is a problem because I Yes, don't sir. want to write it as negative क्योंकि फिर comparison मुश्किल है क्योंकि sign is positive. So I take this negative number inside. So E naught omega L sine of 90 minus omega t. Remember from trigonometry, sine minus sine theta is equal to sine of minus theta. ठीक है. Right? So you can see I have rewritten this. If I now write the value of current instantaneous to be this and the value of applied EMF to be E naught sine of omega t, if I have to find the phase difference between the two, I do omega t minus 90 minus omega t, which means I will get equal to minus 90. So I have done the phase difference of E phase minus the phase of the current. So I can see it is minus 90 degree, which goes to show that
the phasor of EMF or the phasor of applied AC source lags the current by 90 डिग्री, पीछे है तभी नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बनाऊं अपना फेजर प्लेन बनाऊं मैं, जहां पे मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, एंड माय करंट इज समवेयर at some point it is here, हाँ and I know the voltage will lag by 90 degrees from the equation below. That means the voltage is here. So you can see in the case of an inductor, this is a scenario. The voltage is this. At any t, the voltage always lags by 90 degrees. If the phasor turns and this comes here, simultaneously the current phasor will turn this much, so that the angle between them again becomes 90 degree. This is the constant phase difference we have obtained between them. Yes, sir. The other way you could say I will do I phase minus E phase. Do that. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Okay, let's do that also. 90 minus omega t minus omega t. Sorry, ये क्या आ गया? Sin of 90 minus omega t है ना अंदर? 90 minus वेट 90 माइनस ओमेगा टी था पहले, ये सॉरी पहले नेगेटिव साइड में देखते हैं। ई नॉट बाय एल कॉस ओमेगा टी, यहाँ तक ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद माइनस, ओहो यहाँ गलती हो गई ना डेरिवेशन में। दिस इज कॉस इज 90 माइनस अरे थीटा, हमने लिख दिया थीटा माइनस 90। yes, सो दिस इज 90 माइनस ओमेगा टी व्हेन द ओमेगा टी एंटर्स। तभी मैं सोच रहा था लैग कैसे हो गया यार। एनीवे, yes, sir. okay, let me just rewrite this whole thing. So this is, जब वो 90 अंदर गया, so this has become omega t minus 90 degree. Okay, and so let me rewrite the last equation, which is not this. So this is omega t minus 90, and so this is plus 90. So I will just reverse this. Therefore, actually the voltage is leading. उल्टा हो गया ना, Yes, sir. प्लस आ गया Hmm. तो सब्ट्रैक्ट करने पे, so voltage is here and the current is behind it. Why I was thinking what if there is something. So if EMF voltage moves by a certain amount with the same amount current, because their omega is same, but the gap will always be 90 degree. The same gap sustains. So in the case of an inductor, okay, the peak value, as you can also see, of the current is E naught by omega L is the I peak. Omega is being used, L is also being used. So bigger the inductor, lower will be the sine wave magnitude. Yes, sir. छोटी हो जाएगी ना वो, हाँ. ये पीक वैल्यू, ये पीक अगर बड़ा इंडक्टर लगा दिया तो। ठीक है. उधर था E नॉट बाय R रेजिस्टिव में, हाँ. यहाँ पे नहीं है ऐसा। ठीक है, सो व्हाट ठीक इज है. अवर लर्निंग? करंट लैग्स बाय 90 डिग्री 90 degree, sir. हाँ. और वोल्टेज लीड्स बाय 90 degree. One and the same thing, Yes, sir. but we use the concept of Lenz's law, back EMF. Then we applied in a loop. So the sum of all the EMFs is equal to IR, which is not possible here because we already assumed this. So the EMF applied and the back EMF at any instant are equal and opposite. Their sum is zero. Therefore, their sum is zero and they're equal in magnitude. Then we have put separated out dt, written the value, integrated both the sides, got the value of I, taken a full cycle of the t equal to t, that cos omega t average is 0. So the constant of integration is 0. Got the equation. This is my peak, and then all माइनस को अंदर ले जाना था और साइन में कन्वर्ट करना था। तो ये साइन में 90 माइनस थीटा करा, ये माइनस को अंदर ले गए तो उल्टा हो गया, तो फेज आ गया करंट का। द करंट फेज इज, यू कैन सी, एनीवेज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड बाय 90 डिग्री। यही पता चल गया था कि 90 डिग्री बिहाइंड है।
जो भी ओमेगा टी है, ये तो -90 है ना उसका। यस सर। तो ये उस टाइम में देखो, फेजर ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस यहाँ पहुंचा हुआ है, और ये जो है यहीं तक ही पहुंच पाया, 90 डिग्री पीछे ही रह गया। हम्म। तो यहीं पता चल गया था लैग है, जस्ट वी टू आर्टिकुलेट, आई सब्ट्रैक्टेड एंड आई गॉट दिस। हम्म, So current lags by 90 degree, voltage leads by 90 degree. So inductive load whenever you see हाँ। will always, प्योर इंडक्टिव में ये 90 डिग्री होता है। अगर आपको लेस देन 90 नजर आता है तो सर्किट में रेजिस्टर भी था, इसका मतलब, बट वी विल डू दैट सेपरेटली। फॉर एग्जांपल, यू सी अ वैल्यू ऑफ 60 डिग्री बट करंट लैग कर रहा है, हाँ। तो आप बोलोगे है तो इंडक्टिव, लेकिन प्योरली इंडक्टिव नहीं है, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव में ही 90 डिग्री होता है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ प्योर इंडक्टेंस, कि सर्किट में और कुछ रेजिस्टर है ही नहीं, हम्म। प्योर इंडक्टेंस। जब इंडक्टेड। सर्किट में रेजिस्टर भी आ जाएगा तो 90 डिग्री नहीं रहेगा ये फेस डिफरेंस, दिस विल चेंज। यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है। वांट टू हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक, हाँ। क्लोज लुक। You have to know all of this because this is your new French. हम्म। Inductive load, lag, lead, derivation, सब आना चाहिए। यस Generally, सर। I don't stress on memorization, but ये कुछ ना थोड़ा हम्म, mathematical model है और करना कुछ पड़ेगा। सिखाने का इसमें। हम्म, Go through it once and let's discuss. I will also take a small break ठीक है। from talking. हाँ यस सर। Talking too much, I mean, हम्म। सर क्लास कल हम थोड़ी जल्दी ले सकते हैं? 10 सर, घंटी मार देना उठा दोगे तो। 9:30, मतलब मतलब इतनी वहां जल्दी? सुन दूं, हाँ कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, पटाखे लाए हो? नहीं सर, मैं नहीं फोड़ता हूँ। मेरी कल वो केमिस्ट्री क्लास जल्दी है। ओके, नो प्रॉब्लम्स, कर देंगे। मुंह धुलाना तो माफ कर देना भाई। नहीं, वो उसकी तो फिर वो तो मैं खुद ही नहीं धोता। कोल्ड कॉफी हाथ में होगी, मेरे ही होगी, मैं कुछ 2+2 22 लिख रहा हूँ पक्का। यस सर। वो ठीक करते रहना। क्या ठीक है। लिख रहे हो सर, क्या हो गया? यस मैं तो पढ़ने आया था, तो मुझे कहीं और ही ले जा रहे हो। सर। यस सर। मेरे रात को 11 बजे क्या चाहते हो भाई? यस सर। डेरिवेशन करवाओगे रात को 11 बजे? अच्छी हाँ। भली मैं खुफिया देख रहा था। यस सर। एनीवे, आई एम स्टिल ऑन इट बाय द वे। इसमें कॉफी? यस, अच्छा। फुल ओके। चल रहा। ओके। रात को 11 बजे भी ऑल्टरनेटिंग करंट की डेरिवेशन यस सर। उसके लिए तो बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ाई है, इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स 11th को। ओहो। अच्छा, फिर तो और भी जरूरत है। सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम्म। देख लो एक बार ध्यान से, सो दैट हाँ, सारे फॉर्मूले एंड देखे। आस्क मी एनी डाउट कि क्यों लिखा, इसका मतलब क्या होता है। यस। और भी कुछ बताऊंगा मैं, बट जस्ट गो थ्रू ठीक दिस है। फर्स्ट एज अ मैकेनिकल डेरिवेशन की डेरिवेशन तो चलो निपट ही देंगे। हम्म।
कोई स्टेप ना समझ आए, हम्म। फील फ्री टू आस्क। यस। मैंने किसी चैप्टर में ऐसा नहीं करा। कैसा? मैंने बहुत ऐसे डेरिवेशन लाइन बाय लाइन लिख लिख के, अच्छा। तो कॉन्सेप्ट जरूर समझा देता हूँ मैं, लेकिन ऐसे ये वाले कॉन्सेप्ट है ना थोड़े हाँ, इतनी नीड मैथमेटिकल नहीं हैं। लगती। हाँ। हाँ, ये कुछ हो रही है। हम्म। फेजर डायग्राम भी देखो उसका। हम्म। फेजर ठीक है, डायग्राम पूरा हमने, ड्रॉप करो। ओके, फेजर डायग्राम हमने बनाया है। हम्म। ये रहा ना। हम्म। ओके, डू वन थिंग वंस यू रेड दिस, पहले पढ़ लो, मुझे बता दो, ओके, देन आई विल आस्क यू समथिंग टू डू, ओके। जस्ट एज अ, ठीक है सर। ठीक है ना। हम्म। थोड़ा पे भी पढ़ना पड़ेगा, हाथ से लिखोगे हाँ, अभी करना पड़ेगा तो ये तो। 100% यू विल बी एबल टू डू इट। थोड़ा सा इट यस। टेक्स लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, नॉट टू मच, हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी। आई एम ऑल्सो बिकमिंग अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। बन चुके सर। है। बन गए सर अभी आप। नहीं, अभी नहीं, अभी अभी बम फटने वाले हैं, चिंता मत करो। जैसे कि। होने वाले हैं बस, आने वाला हूँ बेटा, मैं प्रस्तुत करते हैं प्रोडक्शंस। अभी ओके। तो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। एसी सर्किट containing कैपेसिटर। सो ऐसे सर्किट को बोलते हैं एसी कैपेसिटिव सर्किट। क्या जी। ओके। ओके, जस्ट सॉरी, आई हैव jumped immediately, but I have not completed the inductor part. Okay, so we have finally found out the values of I for an, so inductor ही पढ़ रहे हैं हम, हाँ। इंडक्टिव सर्किट पे ही हैं अभी भी हम, यस सर। आगे नहीं गए हम। ओके, सो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है। ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है नीचे लिखी है ना, ये हम्म। this quantity is called as, if you compare it with I not in the case of resistive circuit, it was E naught by R। हाँ। यस सर। कंपेयर करो, सो यू कैन सी ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है जो इंडक्टर ऑफर करती है, जो बैक ईएमएफ होता है ना इंडक्टर का, हम्म। धक्का मारने की कैपेबिलिटी। सो यस सर। उसका मेजर भी होना चाहिए कोई। वैसे तो हम इंडक्टर को ही बोलते हैं इट्स अ मेजर, बट द रियलिटी इज कि एसी के अंदर वो मेजर है ओमेगा एल। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, नहीं बोलते इसको हम, द रेजिस्टेंस इज इट ऑफर्स टू द ईएमएफ, वो नहीं है ये। दिस इज अच्छा। द, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम्म। बिल्कुल सेम है, देखो ई नॉट बाय आर की जगह ई नॉट बाय, तो दिस इज प्योरली रेजिस्टिव, हम्म। दिस इज इंडक्टिव।
यस सर। ठीक है। सो ये जो इसको ये बेसिकली इट्स अ नॉन रेजिस्टिव, ऑपोजिशन तो है, हम्म it is in opposition to the flow of current like resistor, but it's not resistance, because when resistance opposes, energy is lost. When the inductor opposes, no energy gets lost. ठीक है। और इसके अगर आपको कन्वेंशनली कोई बोले what is the resistance offered by inductor, your answer is, oh you mean inductance, अच्छा। you mean inductance। ठीक है, तो मैंने ये लिखा ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कई लोग ऐसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो कई लोग इसको सिर्फ रिएक्टेंस भी बोलते हैं, आपकी ओके। चॉइस है। सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रिएक्टेंस, एक वर्ड वो अच्छा। भी चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, सो यू कैन से, सो पीपल विल टेल यू कि ये तो है तो रेजिस्टेंस ही, योर आंसर इज नो, हम्म इट इज रेजिस्टेंस जब होगा तो वो प्योरली रेजिस्टिव आर होना चाहिए नीचे। यस तो सर। वो बोलेंगे ये तो ऑपोजिशन तो ये भी प्रोवाइड कर रहा है, बोला ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है लेकिन ये नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन है, हम्म ये रेजिस्टिव ऑपोजिशन है। इसमें आपका यस। बिजली का बिल आता है, इसमें बिजली का बिल आता ही नहीं है नहीं आता, हाँ। इंडक्टर में, so you don't have to spend any money, हम्म although every circuit has inductor, motor, fan, everything needs inductive power and inductive current चलने के लिए, बट यस सर। पैसे नहीं लगते। बट हम्म ये जो प्योर बिजली होती है उसको खराब करती है, ये स्पॉइल भी करती है, उसकी जो ओके। ताकत है जो आती है उसको खराब करती है। बट एनी वे वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी पावर। तो एक्स, इसको बोलते हैं एक्स। हम्म इफ यू सी अ वर्ड एक्सेल, it is analogous to R. R is pure resistance. हम्म This is inductance. Sorry, हम्म reactance. रिएक्टेंट, हाँ, मैं वही कंफ्यूज हाँ हो हाँ, गया। reactance, सॉरी। या तो बोल लो इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर में भी आएगी, तो कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि वो उसका नाम भी रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो भी ऑपोजिशन है, बट दैट ऑपोजिशन इज मेनली कैपेसिटिव। हम्म ओके। ठीक है। ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस नॉन रेजिस्टिव इन नेचर होती है, हाँ। there is no actual power consumption, but we'll prove that later. Okay, ओके। अब how do we link it to the, इसका significance क्या है ये फिर, है ना? So let's say there is a DC current, हम्म DC voltage you applied, and the frequency is 0, and यस सर। therefore the XL for DC circuit is 0 into L is equal to 0. So ठीक है। if you apply a DC to an inductor instead of AC, and you say what will happen, right? ये हमने so the answer is there is no opposition, हम्म XL is 0, ठीक है। क्योंकि टाइम वेरिंग नहीं होता ना डीसी। डीसी नहीं। में साइन ओमेगा टी का होता है, 5 वोल्ट्स होता है बस, खत्म। यस सर। ये का लिखा होता है 5 sin t, 5 log t, कुछ भी नहीं होता, नो टाइम वेरिएशन इज देयर। यस सर। ओके, so DC is not time varying. हम्म So if it is not time varying, it will not be able to show you the any behavior of opposition. इंडक्टर तो तभी हरकत में आता है जब उसको टाइम वेरिंग ऑपोजिशन। मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, d phi/dt, LDI/dt इंडक्टर के केस में, राइट, -d phi/dt। तो मैं आपको d phi चेंज चाहिए ना, फाई यस सर। बदलोगे कैसे, di/dt से। हम्म अगर आप टाइम वेरिंग कुछ दोगे ही नहीं तो di/dt कहां से लाओगे, नहीं नहीं आता। मिलेगा। नहीं। ओके, एसी के केस में इफ यू अप्लाई some frequency, you will get some inductive reactance, हम्म omega into L. Units are again, remember, no different, है ohms ही, बट अच्छा। रेजिस्टिव ohms नहीं है ये। रेजिस्टिव ohms ये होते हैं, यूनिट्स दोनों के ohms हैं अभी भी। हम्म तो लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी सर फिर रेजिस्टेंस ही हो गया ना एक तरह से। हाँ। नहीं हुआ, ये रिएक्टेंस ही कहलाएगा, नहीं ठीक बोलेंगे हम है। इसको रेजिस्टेंस, ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, इसका नाम रखना ही पड़ेगा। वैसे तो ये ऑपोजिशन भी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी है,
बट इसका नाम जो रखा जाएगा इट इज रिएक्टेंस. ओके. Doesn't consume any power actually, but we will study that later. Okay, now let's talk about AC. एक minute, have we written the correct formula even? Okay, AC yes. हाँ ठीक है, XL is proportional to frequency. हाँ ठीक है, AC के केस में XL is proportional to frequency because frequency in AC there is a frequency, right? Frequency of signal exists. तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. मतलब मैंने जो डेरिवेशन में ये निकाला था पीक में नीचे वाली क्वांटिटी, आई कैन रीराइट दिस एज E नॉट बाय XL. यस सर. गॉट इट? हाँ. तो अब खत्म हुआ है जाके. एंड इफ यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, व्हाट हैपेंस इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. सो एक इंडक्टर ली, उसके साथ एक AC सिग्नल लगा दिया. ओके. और इसकी फ्रीक्वेंसी F रखी और इसका वो नाप लिया कि F पे कितना आ रहा है XL. कैलकुलेट कर लिया ओमेगा इंटू एल. एल तो मालूम है क्योंकि फिक्स्ड है. यस सर. इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर फॉर्मूला, हाँ. स्क्वायर ऑफ टर्न्स एन आई, वो सब सारे फंडे पड़े थे एल के. यस सर. ठीक है, सोलेनॉइड की क्या इंडक्टेंस होती है फलाना एक्सेट्रा. फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज करा थोड़ा, फिर नापी. तो यू कैन सी एक्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. You get a straight line. As you increase the frequency in a straight line, x also increases. ठीक है. Let's go to the next one. Any questions on inductive reactance? मैंने कई बार रिपीट करा है दिमाग में बिठाने के लिए. हाँ. Is there any reactance associated with DC? Is there any reactance associated with DC? Can inductor oppose DC? अच्छा. No, because DC has no time variation. यस सर. Won't be able to oppose. Not time varying. Hence, no opposition to applied EMF और करंट. नहीं कर सकते अपोज आप. यस सर. Will application of AC signal on inductor generate reactance? यस. Yes, it will. काम ही यही है और क्या है. यस सर. AC सिग्नल और इंडक्टर सुनते ही कान खड़े हो जाने चाहिए, बेटा रिएक्टेंस है ये. ठीक है. Basic assumption, there is no resistance in the circuit. सर्किट. ठीक है. ठीक है सर. Okay. Very very simply I am doing like a spoon feeding, but there is a reason for that. You don't have a choice, you have to learn this way. सबको ऐसे सीखना पड़ता है, हमने भी ऐसे सीखा था. क्योंकि वो डीसी की इतनी दिमाग में इंप्रेशन बनाता है ओम्स लॉ का लैंग्वेज, कि पहले तो उस लैंग्वेज से दिमाग हटाना है सबका. फेज, सर पहले तो पढ़ा था, कभी पढ़ा नहीं था फेज. तो इस तरह की नई लैंग्वेज है थोड़ी सी. तो ठीक है. now only a capacitor. If you remember, if we we will not discuss DC here. So I'm just putting a capacitor and a time varying sinusoidal AC signal to it. Okay. Now what is going to happen is E is equal to E naught sin omega t. ठीक है. And V is also written as Q by C across the capacitor. So whatever EMF is coming here is actually getting applied at the plates, right? Yes, sir. तो ये वो अपीयर हो गया. E जो है मैंने यहाँ लिखा इंस्टेंटेनियस, वो अपीयर हो गया. V लिख दिया उसका नाम बस मैंने, क्योंकि that's the way we show it, right? But so Q is equal to CV.
और आपको मालूम है कि डी क्यू बाई डी टी इज करंट. फाइनल गोल इज टू रीच देयर ओनली. यस सर. अब V and E are identical actually. So this is हम्म. I, rate of change of charge. हाँ. C d by dt of E naught sine omega t. C E naught d by dt sine omega t is equal to C E naught into omega cos omega t is equal to omega C E naught. इसको मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे हम्म. साइन से कंपेयर करना होता है हमेशा. हाँ. तो ये मेरा आ गया आई टी. ओके, बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ई नॉट के नीचे कुछ चाहिए होता है मुझे. मैं ओमेगा सी को नीचे ले जा रहा हूँ और ऐसे लिख रहा हूँ हम्म. साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी आई टी. सबसे पहले मैं देखता हूँ फेज क्या आया मेरा करंट का. आई का फेज कितना है. ओके, 90 माइनस ओमेगा टी. हम्म. एंड हमें क्या लेना था. वी वर टू टेक दिस एज ई का कितना फेज था, ओमेगा टी. हाँ. सो ई फेज इज दिस. सो ई फेज माइनस आई फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस 90 प्लस ओमेगा टी. दिस इज, ये क्या आ गया. हम्म. कुछ गड़बड़ फिर है. कोई गड़बड़ हो गई डेरिवेशन में. वेट हम्म. वेट वेट वेट. सो ओमेगा डी आई वेड डेरिवेटिव इज कॉस. कॉस को हम साइन लिख सकते हैं. ओके. because sine is, remember, in second quadrant positive, so let's write it as positive. So हम्म. this is positive. This is omega t minus 90 minus 90 प्लस. ठीक है, ये क्योंकि प्लस कर दिया मैंने. हाँ. सो टेक फेज एज 90 प्लस ओमेगा टी. ओके, नहीं तो बनेगा ही नहीं. 90 माइनस ओमेगा टी माइनस इज इक्वल टू माइनस 90. सो यू सी the phase of voltage is lagging now, just reverse of inductor. हाँ. So if I have to draw that diagram, I am going to use the phasor plane, and the phasor plane is this. ठीक है. So this is your, so let's say the uh, current is here at some time t, then the value of voltage has to be 90 degree behind it. मैंने इसमें वोल्टेज का सर्कल छोटा दिखा दिया. दैट्स माय वो तो चॉइस. कोई नहीं. सेंटीमीटर पे था, मर्जी है आपकी. सो दिस हाँ. इज आई टी and this is ET. So you can see the voltage is lagging by 90 degree पीछे. So हाँ. if your this thing moves by a certain amount, rotates rather, like this, then your E is going to be here again 90 degree, हम्म. but the angle has to be 90. जो मर्जी कर यस. लो, the difference. Pure capacitor है, याद रखना. ठीक So है. here what is the language? Current leads the voltage, हम्म. या voltage lags behind current. ओके. So if I say resistor, resistance, हम्म. no phase difference. ठीक है. If I say inductor, E leads by 90 degree. If I say capacitor, E lags by 90 degree.
सो आई लैग्स बाय 90 डिग्री। पीछे आई मतलब एक लीड हाँ। करेगा तो दूसरे को लैग करना ही पड़ेगा। यस सर। आई लीड्स बाय वन, और मतलब या तो ये लैंग्वेज यूज करो या ये लैंग्वेज बाय। जस्ट अ क्विक रिविजन। ठीक है। यहाँ पे हमने वर्ड सुना था इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। हम्म, ठीक है। अब ठीक है। यहाँ वापस जाता हूँ मैं कैपेसिटर में। सो दिस इज कैपेसिटर का मतलब है दिस सर्किट इज कैपेसिटिव एसी सर्किट। दिस वन इज इंडक्टिव एसी सर्किट। हम्म, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली की वजह से 90-90 का गैप है। नहीं तो ये -90 की जगह -63 होता तो यू वुड हैव सेड ओके द ओके 63 डिग्री का गैप है, करंट लीड कर रहा है बट 90 डिग्री से नहीं लीड कर पा रहा, 63 डिग्री से लीड कर रहा है। इसका मतलब है तो कैपेसिटी भी, लेकिन साथ में कुछ और भी है, रेजिस्टेंस भी है, हाँ। जिसने इसकी जो लीड करने की ताकत है करंट की थोड़ी घटा दी है। हम्म, दिखेगा कैलकुलेशंस में। बट एनीवे लेट्स गो बैक and see this equation. So you can see here, this part is I naught. पीक लिखते हैं ना शुरू में। हम्म, ओम्स लॉ से ई नॉट बाय आर आया था, यस सर। लेंजेस लॉ से ई नॉट बाय ओमेगा एल आया था, यहाँ पे हम्म, 1/ओमेगा सी आया। तो इफ यू नोटिस कंपेयर दिस आई नॉट इज ई नॉट बाय 1/ओमेगा सी। ओमेगा। ठीक है। सी इज द कैपेसिटर। सो आई नॉट इज गिवन बाय ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी, and comparing this with the other ones, we can see this is something to do with reactance. Remember, inductor and capacitor both only offer opposition or effective resistance, but the name is not resistance for both of them. This is called as XC, and it is called as capacitive reactance, and is given by 1/omega C. So capacitive reactance is inversely proportional to F, which means if you draw a graph of XL versus F, it will exhibit that as the frequency is going up, XL is coming down. Got it? यस सर। Capacitive reactance, ohms, हाँ हम्म, है, but फिर भी resistor नहीं है ये. It also यस सर। consumes no power, real power. पैसे नहीं लगते. ठीक है। Any doubts, please shoot your question. Read it once for an inductor also. See which step doesn't make sense to you. Just read it carefully. देख लो, पढ़ना तो लिखना तो फिर भी पड़ेगा अपने हाथ से, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, हम्म, समझना पड़ेगा कैसे आया था, कौन सी चीज क्या चीज है। बट देखने से इफ यू स्टिल हैव अ स्पॉन्टेनियस डाउट इन योर माइंड, फील फ्री टू आस्क, हम्म, नो वरीज। ये चैप्टर मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। ठीक है।
ठीक है सर। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, so let's meet tomorrow for the practice of numericals on this topic and getting more confident on the terminology. ओके। ठीक है, ये तो तीनों हो गई अंडरस्टैंडिंग की। तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एसी सबके साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तीनों ही रेजिस्टेंस देते हैं वापस, बट उनका नाम अलग अलग होता है ठीक है। और उनके फॉर्मूलेज होते हैं। ओमेगा एल 1/ओमेगा सी इज द न्यू थिंग फॉर यू। हम्म। डीसी के केस में अगर आप कैपेसिटर को लगाओगे तो डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर लेता है यस सर। फाइनली, और जो बैटरी की वोल्टेज होती है वही कैपेसिटर की वोल्टेज आ जाती है सेम। इट ब्लॉक्स डीसी, यस। लेकिन इट डजंट ब्लॉक एसी। इट अलाउज इट टू पास, बट विद अ condition that voltage will now lag. ठीक है। ठीक है जी, यस सर। see you tomorrow then, good night, sleep